Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have seen the different types of receiver, functions of receiver, and in that lecture, we have completed one type of receiver, that is tuned radio frequency receiver. In that lecture, I have explained you the block diagram of tuned radio frequency receiver. The working of tuned radio frequency receiver is same, the which I have explained you verbally in my lecture. There is no such very important for explanation of each block wise. In further part of block diagram of different type super heterodyne AM receiver, we are going to more clear with working also the working of these blocks. So today we are going to start the topic of next type of receiver, that is super heterodyne receiver. So before starting the super heterodyne receiver, first we have to understand the principle of super heterodyne. What is super heterodyne principle? First we have to clear what is the principle of super heterodyne. If you remember, in my last lecture I have explained you the shortcomings of tuned radio frequency receiver. The shortcomings, the drawbacks of tuned radio frequency receiver, the first one is instability. Why it is instability? Because the two blocks, front end blocks, first RF amplifier and second RF amplifier, if a small part of output is feedback to the input, that input will also be amplifier. So later for further, it will not work as amplifier, it will behave as an oscillator. So that's why the response will be unstable. The output is not going to be stable after some time. Because of this gang tuning, the capacitor components are used. So because of this stray capacitance, part of the output will be feedback to the input, and that input will also be going to be amplifier. So that's why after a continuous working, it will behave as a oscillatory, not will work as an amplifier. So first drawback of tuned radio frequency receiver, that it is unstable. The second one disadvantage is that the main disadvantage, insufficient selectivity. In that point I have explained you, if you use the AM at higher frequency value, for example the AM range is given 540 kilohertz to 1640 kilohertz. If you are receiving the AM signal in the range of high frequency, in the range of for example near to the 1640 kilohertz, the selectivity of this receiver is poor. It is not able to select the proper desired signal because of incapable of the using of this component in this particular first RF amplifier, second RF amplifier. They are not able to select properly the desired signal in the high frequency value, in the high frequency, in the near about the region of high frequency of AM band. So that's why these are the disadvantages of tuned radio frequency receiver. By seeing this disadvantage, we are moving towards the next type of principle, that is super heterodyne principle. So today we are going to understand what is super heterodyne principle, and after understanding this principle we are going to see the super heterodyne AM receiver, the next type of receiver, super heterodyne AM receiver. ओके तो आज हम लोग समझते हैं, सबसे पहला ये प्रिंसिपल को समझते हैं कि सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को इधर पे दिख रहा होगा मेरे ये प्रेजेंटेशन में, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखा हुआ है सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के बारे में। क्या दिया हुआ है? सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट। अब आपको कुछ ये स्टेटमेंट से कुछ थोड़ा बहुत तो क्लिक हो रहा होगा कि ये किसके बारे में क्या बात हो रही है। सबसे पहले सुपर हेटेरोडाइन मतलब आप ये क्लियर कर लो कि जब भी नाम सुपर हेटेरोडाइन आएगा आपके दिमाग में, कहीं पे भी आएगा, तो आपके दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जाना चाहिए मिक्सर का। सुपर हेटेरोडाइन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विथ मिक्सर। अब मिक्सर मतलब क्या? मिक्सर मतलब यहाँ पे अब आपको ना कुछ दो डिफरेंट कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या होगी? मिक्स होगी, एक साथ आपस में क्या होगी? ये मिक्स होगी। मिक्सर मतलब मिक्सिंग, मिक्सिंग से बना मिक्सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा है? सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी को ये मिक्सर क्या करेगा? मिक्स करेगा, और मिक्स करके आउटपुट में क्या देगा आपको? इधर पे देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट। इनपुट में दो अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करेगा? मिक्स करेगा
and converting it into a fixed low frequency component at the output. और क्या करेगा ये मिक्सर, आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा। आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी यानी फिक्स आउटपुट हमेशा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इनपुट में भले से कुछ भी वेरिएशन हो लेकिन आउटपुट हमेशा आपका काय में मेंटेन रहेगा, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, वो भी लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं, लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में क्या करेगा ये कन्वर्ट करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, आप अगर आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो तो जो दो प्रॉब्लम में टीआरएफ में आपको बता रहा था, क्या प्रॉब्लम बता रहा था, एक तो इनस्टेबिलिटी वाला, यानी अभी क्या होते जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा ना, ऑसिलेटरी बिहेवियर की वजह से आउटपुट क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा, यानी आउटपुट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो पहला ड्रॉबैक ये क्या होगा, रिमूव होगा, अगर आउटपुट आपका एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट होता है। दूसरा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे ये बता रहा था टीआरएफ में कि इनसफिशिएंट सिलेक्टिविटी होती है। इनसफिशिएंट सिलेक्टिविटी कब होती है, कौन सी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है, जब इनपुट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इन द रेंज ऑफ कौन सी बताया, 1600 की रेंज में अगर एम रिसीव हो रहा है तो उसमें ये पर्टिकुलर सिलेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम भी जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम है, अगर हम लोग एक आउटपुट फिक्स फ्रीक्वेंसी में ही कन्वर्ट कर देंगे तो कौन सी भी रेंज का इनपुट आने दो, आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको सुपर हेटेरोडाइन का कॉन्सेप्ट है, क्या कह रहा है सुपर हेटेरोडाइन का कॉन्सेप्ट, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट। तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल काय का प्रिंसिपल है, दो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की इनपुट को मिक्स करने का इनपुट साइड पे और आउटपुट में किस पे कन्वर्ट करने का, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट, और आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करने का। अब जैसा कि अभी आपको अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाया, आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि ये सर क्या बता रहे, कुछ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट क्या है, ये कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। अब सबसे पहले ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले आपको ना मिक्सर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सुपर हेटेरोडाइन का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है, मिक्सर से रिलेटेड है। अब आप लोग ये ब्लॉक को देखो, ये आपको ब्लॉक नजर आ रहा है, दिस इज द ब्लॉक विच इज नेमिंग बाय मिक्सर, ये मिक्सर करके ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। अब मिक्सर का एक्चुअल रोल क्या है, मिक्सर क्या काम करता है, फॉरगेट अबाउट दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को भूल जाओ, अब ये स्टेटमेंट जो मैंने समझाया अभी आपको कुछ नहीं मालूम। अब सिर्फ आप लोग ये ब्लॉक डायग्राम को देखो और ये ब्लॉक डायग्राम का वर्किंग अंडरस्टैंड करो। दिस इज अ मिक्सर ब्लॉक, मिक्सर ब्लॉक में दो अलग अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आ रहे हैं। एक एरो मार्क यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ने डिनोट किया किससे, एफएस से। जो भी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिसीवर में आ रही है, जो आपको चाहिए, जो आपको रिसीवर को सिलेक्ट करना है, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, उसको डेजिग्नेट करते हैं किससे, एफएस से। तो ये एफएस से आप डेजिग्नेट किए कौन सी फ्रीक्वेंसी, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। और एक और दूसरी फ्रीक्वेंसी इनपुट में जा रही है यही मिक्सर को, उसका नाम है एफओ। एफओ स्टैंड फॉर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, एफओ स्टैंड फॉर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। अब लोकल ऑसिलेटर मतलब एक फिक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, जो भी आपको रेंज में रखना होगा आप इसको पर्टिकुलर चेंज करोगे, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आउटपुट देगा। तो इसके लिए इसका नाम है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आप इनपुट मिक्सर के इनपुट में भेज रहे हो, एक इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफएस, और एक दूसरी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या है, एफओ। अब मिक्सर क्या करता है, ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनपुट में लेता है और आउटपुट में ना चार अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट करता है। ये मिक्सर का ऐसा सर्किट होगा, ये जो दो अलग इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को इनपुट में लेता है और आउटपुट में ना चार तरीके की अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को जनरेट करता है। और वो चार कौन कौन सी अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी जरा ध्यान से देखो। एक तो आउटपुट में जो पहला फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट यहाँ पे दिखा रहा है वो एज इट इज आपका इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, जो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी आप इनपुट में यहाँ पे दिए हो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, तो दो तो पहले आउटपुट में एज इट इज वैसे ही इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएस भी, और ये जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफओ भी एज इट इज। तो मिक्सर क्या कर रहा है, चार अलग डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जनरेट कर रहा है, जिसमें से दो तो वो खुद एज इट इज ऐसी हो गई, एक ये पहली वाली इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएस और एक ये दूसरी वाली लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफओ एज इट इज ऐसे ही। तीसरा जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो मिक्सर काय की जनरेट कर रहा है, कौन सी टाइप की जनरेट कर रहा है, दोनों की एडिशन करके इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएस प्लस लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफओ, दोनों का एडिशन करके एक अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी भी जनरेट कर रहा है। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या बनेगा, दोनों का एडिशन करके एफओ प्लस एफएस।
और चौथी जो अलग टाइप की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट में जो जनरेट कर रहा है वो दोनों का क्या करके सब्ट्रैक्ट करके, दोनों का सब्ट्रैक्ट करके मतलब एफओ माइनस एफ एस, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफ एस। मतलब मिक्सर इन शॉर्ट समरी में आपको समझा रहा हूं, इन शॉर्ट समरी में मिक्सर क्या करता है, दो अलग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनपुट में लेता है और चार अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट में जनरेट करता है। कौन कौन सी? एक तो पहली वाली एज इट इज ऐसी, दूसरी वाली एज इट इज ऐसी, तीसरी वाली दोनों का एडिशन करके और चौथी वाली दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। अब आपको आई होप क्लियर हुआ होगा मिक्सर का नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो अगर कहीं पे भी आपको आया क्वेश्चन आया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर, अगर सिर्फ आपको ये पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिक्सर, तो concept of mixer is nothing but it is used for mixing two different frequency component at the input and generating four different type of frequency component at the output। दो अलग तरीके की इनपुट में लेने का, दो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनपुट में लेने का और चार अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में जनरेट करने का। वो चार अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी रहेगी? एक तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तीसरी दोनों का एडिशन करके और चौथी दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। ठीक है, अब क्लियर हुआ? यहां तक थोड़ा बात क्लियर हुई आप लोगों को मिक्सर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग को ये मिक्सर के कॉन्सेप्ट से अपनी क्या बात लेना है, क्या अंडरस्टैंड करना है, जो हम लोग को आगे बढ़ना है सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल के बारे में जो बोल रहा हूँ, व्हाट इज सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल में खाली ये चारों में से एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आउटपुट हम लोग यूज करते हैं, ये तीन नहीं यूज करते हम लोग, खाली चौथी वाली यूज करते हैं। वो चौथी वाली कौन सी हो भी? दोनों का सब्ट्रैक्शन करके। ये आउटपुट में हमेशा हम लोग लेते हैं अपने रिसीवर के वर्किंग में। ये मैंने जो वर्किंग आपको समझाया ये मिक्सर के बारे में समझाया। मिक्सर का काम क्या होता है? दो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी को इनपुट पे लेने का और चार अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने का, जिसमें से हम लोग अपने रिसीवर में जो यूज करने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करने वाले हैं, आउटपुट कौन सा यूज करने वाले हैं, वो वाला आउटपुट जो दोनों का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। दोनों फ्रीक्वेंसी का क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। यानी कौन सा वाला अभी हम लोग आउटपुट हमेशा हमेशा कंसीडर करेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे हमेशा ये वाला एफ ओ माइनस एफ एस। बाकी का तीन से हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग मिक्सर का आउटपुट जो भी अब रिसीवर की वर्किंग में लेंगे वो कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है? एफ ओ माइनस एफ एस, दैट इज द डिफरेंस ऑफ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये आउटपुट हमेशा हम लोग मिक्सर का कंसिडर करेंगे एज अ मिक्सर आउटपुट हमारे रिसीवर की वर्किंग में। तो अब यहाँ पे वही स्टेटमेंट अब ध्यान से देखो, सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है। सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट। तो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल क्या है? इज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल है? मिक्सिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट। तो इनपुट में दो अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या करता है, मिक्स करता है, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट। और ये दोनों इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को इनपुट में लेके इसको कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है? इनटू अ फिक्स, एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में, एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में एट द आउटपुट। अब आपके सवाल उठ रहा होगा ये कैसे पॉसिबल है, आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में लेगा, ये दोनों तो हमेशा वेरी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, तो आउटपुट हमेशा कैसे फिक्स रहेगा? तो आपको बताते चलूं, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये जो आपको नाम नजर आ रहा है ना, ये नाम, दूसरा नाम जो नजर आ रहा है लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास एडजस्टेबल ऑप्शन रहेगा। ये हम इसको एडजस्ट करेंगे हमेशा ताकि आउटपुट हमेशा हमारा एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी में मेंटेन रहे। तो एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी में मेंटेन करने के लिए जो भी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी आ रहा है उस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को देखते हुए वी हैव टू मैनुअली एडजस्ट। हम किसको मैनुअली एडजस्ट करेंगे? ये एडजस्टिंग का ऑप्शन किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का? लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का। तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हम लोग एडजस्ट करेंगे किसको देखते हुए? इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, इन ऑर्डर टू किसको मेंटेन करने के लिए? ये आउटपुट को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, एफ ओ माइनस एफ एस। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? एफ ओ माइनस एफ एस। मान के चलो अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये मुझे मेंटेन करना है 5 किलोहर्ट्ज, अगर मुझे ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना है 5 किलोहर्ट्ज, तो 5 किलोहर्ट्ज मेंटेन करने के लिए अगर इनकमिंग सिग्नल 5 किलोहर्ट्ज का आ रहा है तो मुझे लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे रखनी पड़ेगी? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्या बोला मैंने, समझ में आया? मुझे ये आउटपुट एफ ओ माइनस एफ एस 5 किलोहर्ट्ज का चाहिए, 5 किलोहर्ट्ज का रखने का है, और इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज की आ रही है,
तो मुझे वो हिसाब से लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितने पे रखना पड़ेगा, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को कितने पे एडजस्ट करूंगा मैं? कोई जवाब दे सकता है? क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मुझे ये आउटपुट FO माइनस FS 5 किलोहर्ट्ज पे मेंटेन करना है, कांस्टेंट रखना है, ये 5 किलोहर्ट्ज ही चाहिए मुझे। अब इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10 किलोहर्ट्ज का आ रहा है, 10 किलोहर्ट्ज का आ रहा है, सॉरी 5 किलोहर्ट्ज का आ रहा है। तो मुझे लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितने पे रखने का है, कोई बता सकता है? 0। कैसे? आप स्टेटमेंट ये देखो ना, FO माइनस FS कितना चाहिए आपको, 5 किलोहर्ट्ज चाहिए, ठीक है। ये आउटपुट आपको कितना चाहिए, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट करके कितना चाहिए आपको, 5 किलोहर्ट्ज का चाहिए। और मैंने FS कितना बोला आपको, 5 किलोहर्ट्ज का ही आ रहा है। तो आप लोकल हाँ, ऑसिलेटर को कितने पे रखोगे? तो आपको सेम वैल्यू इधर ही चाहिए, तो फिर करना क्या है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो देखो ना, ये तो क्या है, चौथा वाला स्टेटमेंट क्या है, FO माइनस FS, ये स्टेटमेंट क्या है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो हम हाँ, तो लोग को 0 - 5 0 किलो माइनस 5 तो -5 हो जाएगा, 0 माइनस 5 तो -5 हो जाएगा। तो उसके बढ़कर सोचो ना, अगर आपको 5 चाहिए तो ये कितना होना चाहिए, 10 - 5 10 माइनस 5, 10 माइनस बराबर 5, 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 5। 5 तो किलो। लोकल ऑसिलेटर कितने पे रखना पड़ेगा अपने को, 10 पे। 10 पे, वेरी गुड। तो ये चीज क्लियर कर लो आप लोग, हमेशा इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को देखते हुए अपने को किसको एडजस्ट करने का है, ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को, ताकि ये आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहे। तो अगर ये आउटपुट आपको हमेशा 5 किलोहर्ट्ज का चाहिए, तो इनकमिंग सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपको किसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लोकल ऑसिलेटर। अभी ये 5 ही चाहिए, अब मैं चेंज कर रहा हूं, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी मेरा आ रहा है 2 किलोहर्ट्ज का, तो अब कितने पे करूं इसको, ये इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज का आ रहा है, तो अब लोकल ऑसिलेटर को कितना करूं, ये 5 ही चाहिए, 4 ये 5 ही चाहिए। ये आउटपुट हमेशा 5 किलोहर्ट्ज ही रहना चाहिए। अब ये आ गया 2 किलोहर्ट्ज, तो ये कितने पे करूं, 12 ये 2 किलोहर्ट्ज का आ रहा है, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज का आ रहा है, और ये आउटपुट हमेशा 5 किलोहर्ट्ज ही रहना चाहिए। तो अब लोकल ऑसिलेटर पे कितने पे चेंज करना पड़ेगा, सो दैट ये हमेशा 5 किलोहर्ट्ज का मिले। अब आप लोग सिंपल है ना मैथमेटिक्स, 7 माइनस टू कितना होता है, 7 सर 7 माइनस 2 कितना होता है, 5 5 5 5। तो लोकल 5 ऑसिलेटर कितने पे करना पड़ेगा, लोकल 5 पे ऑसिलेटर करना पड़ेगा। 7 पे करना पड़ेगा। ये अगर 2 पे आ रहा है तो आपको इसको कितने पे करना पड़ेगा, 7। 7 माइनस 2 7 करके आपका कितना आएगा, इधर पे 5 आएगा, ठीक है। मैं कैसा है कि अभी लिख के आपको इधर पे समझा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको उसको लिख के आपको पेंसिल से आपको समझा पाता था। इधर पे अगर कुछ एनोटेशन होता ना तो मैं यूज कर सकता था, उसको आपको समझा पाता था। कैसा है कि ये चीज अभी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बता रहा था, हमेशा हम लोग को ना ये आउटपुट जो है ना वो मेंटेन करना है फिक्स। तो ये इनकमिंग सिग्नल को फ्रीक्वेंसी को देखते हुए एडजस्ट किसको करना है, हमेशा लोकल ऑसिलेटर। ओके, तो ये प्रिंसिपल जो है सुपर हेट्रोडाइन का प्रिंसिपल, कौन है, एक मिनट, साहिल पठान म्यूट करो। तो सुपर हेट्रोडाइन का जो प्रिंसिपल है, इट इज द प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द इनपुट एंड कन्वर्टिंग अ फिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एट द आउटपुट। तो ये मिक्सिंग का प्रिंसिपल अब हम लोग यूज करेंगे अपने कहाँ पे, एएम के रिसीवर में। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम अभी आपको नजर आ रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ किसका है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। इसलिए नाम देखो क्या लिखा हुआ है, एएम सुपर हेट्रोडाइन। अब सुपर हेट्रोडाइन नाम लेते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे मिक्सर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा, मिक्सर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ होगा। जैसे आप लोग इधर पे देखेंगे ना, मिक्सर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा, एएम सुपर हेट्रोडाइन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एएम सुपर हेट्रोडाइन। तो एएम सुपर हेट्रोडाइन यानी सुपर हेट्रोडाइन मतलब आपको मिक्सर ब्लॉक नजर आएगा ही आएगा, मिक्सर नाम का इधर पे नजर आएगा ही आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? तो मैं जो आपको चीज ये जो समझा रहा था ना, मिक्सर का कॉन्सेप्ट जो समझा रहा था, मिक्सर क्या करता है, दो अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को इनपुट में मिक्स करता है और आउटपुट में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जनरेट करता है। तो ये जो आपको डिफरेंस जो नजर आ रहा है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, इसको बोला जाता है IF से। IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी,
IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका इसके लिए उसका नाम क्या यूज होता है, IF, कैपिटल IF। कैपिटल IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। अब ये चीज आपको हमेशा रिमेंबर करना है, द डिफरेंस FO माइनस FS इज नोन बाय IF। IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो दोनों का डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है IF, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इट स्टैंड फॉर, अब ये AM रिसीवर में अलग होता है, FM रिसीवर में अलग होता है। इसकी वैल्यू ना स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि कितने पे रखना है। तो जब AM रिसीवर यूज होता है, तो जो मैं आपको बता रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा था 5 किलोहर्ट्ज, तो AM रिसीवर में इसकी वैल्यू है जो हमेशा स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, वो कितने पे किया गया है, 455 किलोहर्ट्ज। यानी जब भी AM रिसीवर की बात आएगी तो ये आउटपुट जो मेंटेन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो कितने फ्रीक्वेंसी पे मेंटेन होना चाहिए, 455 किलोहर्ट्ज। तो अभी जब आगे चल के हम लोग AM रिसीवर देखेंगे तो AM रिसीवर में आपको मैं दिखाऊंगा, वो ब्लॉक डायग्राम में IF लिखा हुआ है और IF की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 455 किलोहर्ट्ज। तो ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ है कि AM रिसीवर में रिसीव करने के लिए जो IF की वैल्यू है वो कितने पे रहना चाहिए, 455 किलोहर्ट्ज पे रहना चाहिए। तो इट इज अ कांस्टेंट फिक्स वैल्यू। तो ये कांस्टेंट फिक्स वैल्यू और लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है। आप AM का रेंज देखो कितना है, 540 किलोहर्ट्ज से लेकर 1640 किलोहर्ट्ज, लेकिन उस रेंज से भी कम वैल्यू पे सिलेक्ट किया हुआ है। कितने पे सिलेक्ट किया हुआ है, 455 किलोहर्ट्ज, यानी ये रेंज से भी कम है। ये रेंज की वैल्यू से भी क्या है, IF की वैल्यू क्या है, कम है। ताकि तो जो प्रॉब्लम जो हो रहा था ना हम लोग को, हाई फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम, वो भी क्या हो गया, प्रॉब्लम रिमूव हो गया इसमें। तो अभी जो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ना, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ये ब्लॉक डायग्राम है AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का। अब इसके ब्लॉक डायग्राम में आपको देखो क्या क्या नजर आएगा। सबसे पहला ब्लॉक जो नजर आ रहा है वो RF स्टेज, जो हम लोग वहां पे देख रहे थे, फर्स्ट RF एम्पलीफायर, सेकंड RF एम्पलीफायर, ये दोनों को कंबाइन करके एक नाम दे दिया, एक कंबाइंड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, RF स्टेज का नाम दे दिया। तो ये ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले आपको नजर आएगा RF स्टेज, यानी इसके अंदर भी मल्टीपल नंबर ऑफ RF एम्पलीफायर है, तो उनको कंबाइन करके एक ही नाम दे दिया, RF स्टेज करके। दूसरा ब्लॉक आपको जो नजर आएगा वो काय का नजर आएगा, यहाँ पे नाम जो सुपर हेटेरोडाइन है, तो सुपर हेटेरोडाइन के नाम के हिसाब से सबसे पहला इधर पे आपके दिमाग में आना चाहिए मिक्सर। मिक्सर का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये मिक्सर है, उसके नीचे कौन सा ब्लॉक है, लोकल ऑसिलेटर, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जाती है, ठीक है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जाती है इधर पे इनपुट में। फिर मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर का जो आउटपुट मिलेगा वो कौन सा आउटपुट मिलेगा, वो IF मिलेगा। तो IF को एम्पलीफायर करने के लिए जो नेक्स्ट ब्लॉक आपको नजर आएगा उसका नाम है IF एम्पलीफायर। बाकी इसके आगे का प्रोसेस जो हम लोग ने TRF में देखे थे, डिटेक्टर होगा, फिर ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर होगा। तो मेन चेंजेस काय में आया है, मेन चेंजेस TRF रिसीवर और AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में काय में आया है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो दोनों RF एम्पलीफायर तो उनको कंबाइंड करके एक ही नाम दे दिया, एक ही ब्लॉक दे दिया, RF स्टेज। अब सुपर हेटेरोडाइन जब भी आता है ना, तो आपके दिमाग में मिक्सर का ब्लॉक आना चाहिए, तो इसलिए सुपर हेटेरोडाइन में हमेशा मिक्सर ब्लॉक आता है, इसलिए मिक्सर का ब्लॉक यूज हुआ है। मिक्सर के ब्लॉक के नीचे ही, फौरन नीचे ही कौन सा ब्लॉक रहेगा, लोकल ऑसिलेटर, क्योंकि लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी इनपुट में जाती है। एक तो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी जाती है और दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी जाती है, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जाती है। ये यहाँ पे ये गलत है, ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी IF एम्पलीफायर में नहीं जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, मिक्सर में जा रहा है। लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सीधा कहाँ पे जा रही है, मिक्सर में। अब ये दोनों का जो इनपुट मिक्स करके जो आउटपुट मिलता है वो कौन सा मिलता है, IF मिलता है, इसलिए उसका नाम दिया हुआ इधर पे IF एम्पलीफायर। और उसके बाद का प्रोसेस जो पहले हम लोग ने देख चुके हैं, डिटेक्टर यानी डिमॉड्यूलेशन करना है, डिमॉड्यूलेशन करने के बाद में फिर ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका वर्किंग समझा देता हूं, अभी आपको क्लियर कर देता हूं। नाउ द टॉपिक इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम, और इसका वेवफॉर्म के साथ में आपको आना बहुत जरूरी है। वेवफॉर्म के साथ में आपका समझना बहुत जरूरी है कि हर ब्लॉक के आगे कौन कौन सा वेवफॉर्म भी रहेगा, वो भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फ्रंट एंड में क्या नजर आएगा, दिस इज व्हाट, रिसीविंग एंटेना। तो एंटेना के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, अपने सिग्नल को क्या कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। तो एंटीना क्या करेगा, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ब्लॉक जो नजर आ रहा है वो RF स्टेज नजर आ रहा है। RF स्टेज का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था, RF एम्पलीफायर के थ्रू क्या करते हैं, वी आर एबल टू सिलेक्ट डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर अनवांटेड सिग्नल। तो जो डिजायर्ड सिग्नल है
वो डिजायर्ड सिग्नल हम लोग किससे सिलेक्ट कर पाएंगे? आरएफ एम्पलीफायर से। तो आरएफ स्टेज का काम क्या होगा? ये रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम में आरएफ स्टेज का काम क्या है? टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर अनवांटेड सिग्नल। तो जो हमारा रिसीवर का जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करेंगे? इधर आरएफ स्टेज रिस्पॉन्सिबल है। तो आरएफ स्टेज के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे? जो डिजायर्ड सिग्नल है उसको सिलेक्ट कर पाएंगे और जो अनवांटेड सिग्नल है उसको क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे किससे डिनोट किया हुआ है? उसको इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी यानी किससे डिनोट किया हुआ है? एफएस। तो मिक्सर को एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी कौन सा जा रहा है? एफएस। और दूसरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? लोकल ऑसिलेटर। लोकल ऑसिलेटर से जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा वो एफओ। तो वो एफओ इधर पे नहीं जा रहा है, आपका इधर पे जा रहा है। इधर पे करेक्शन कर लेना, दिस इज नॉट गोइंग इन आईएफ एम्पलीफायर लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, इट इज डायरेक्टली गोइंग टू द मिक्सर ब्लॉक ओनली। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाया था मिक्सर का, दो अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनपुट में आती है, एक इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी एफएस और एक लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एफओ। तो दोनों इनपुट को मिक्स करता है, दोनों फ्रीक्वेंसी को मिक्स करता है और आउटपुट में एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जनरेट करता है। देखो इधर पे नाम आपको दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा IF, कैपिटल IF, विच इज द डिफरेंस ऑफ लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों का डिफरेंस करके लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी FO और इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी की FS, दोनों का डिफरेंस करके क्या जनरेट करता है? IF। और AM में इसकी वैल्यू फिक्स है, कितने पे? यहाँ पे नाम लिखा हुआ इधर पे दिख रहा है 455 किलोहर्ट्ज। तो हमेशा AM रिसीवर का IF वैल्यू कितना है ये आपको याद रखना है, इट इज 455 किलोहर्ट्ज। तो एक फिक्स लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है जिसकी वैल्यू कितनी है? 455 किलोहर्ट्ज। तो हमेशा हम लोग को ये आउटपुट कितने पे मेंटेन करने का है? 455 किलोहर्ट्ज। इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितना भी रिसीव हो, हम लोग को एडजस्ट किसको करने का है? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का है, सो दैट हमारा ये आउटपुट कितने पे मेंटेन रहे? 455 किलोहर्ट्ज पे मेंटेन रहे। इसके बारे में एग्जांपल के साथ में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि कैसे 455 किलोहर्ट्ज मेंटेन रहेगा बाय सीइंग द इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी। इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी कुछ भी आ सकती है, तो हम लोगों को किसको एडजस्ट करने का है? कौन सी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का है? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का है, ताकि आउटपुट हमेशा कितना मिले आपको? 455 किलोहर्ट्ज मिले। तो ये जो 455 किलोहर्ट्ज फिक्स फ्रीक्वेंसी है, इसी को बोलते हैं IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब क्या होगा? मिक्सर का जो आउटपुट है वो IF आया, अब IF को क्या करना है? आपको एम्पलीफाई करना है। तो IF एम्पलीफायर के थ्रू आप क्या करोगे? उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप क्या करोगे? IF वैल्यू को आप क्या करोगे? एम्पलीफाई करोगे। फिर इसके बाद का प्रोसेस वही है, डीमॉड्यूलेशन, यानी डिटेक्टर के थ्रू क्या करेंगे? आप डीमॉड्यूलेशन करेंगे। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होकर आपको ओरिजिनल सिग्नल के फॉर्म में मिलेगा। अब ओरिजिनल सिग्नल के सिग्नल को क्या करना है? फिर आपको उसका पावर लेवल बढ़ाना है, तो क्या यूज करोगे? ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे। ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे तो पावर लेवल उसका बढ़ जाएगा। तो ये ओरिजिनल सिग्नल जो सेंडर ने भेजा था वो एग्जैक्टली वो फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप फाइनली उसको सुन पाओगे। कहाँ पे सुन पाओगे? किसके थ्रू सुन पाओगे? व्हाट इज दिस? ये क्या है आपका? लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर के थ्रू अब आपने ओरिजिनल साउंड को जो सेंडर ने भेजा था वो उसको आप क्या कर पाएंगे? सुन पाएंगे। तो ये ब्लॉक है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। सुपर हेटेरोडाइन मतलब आपके दिमाग में फौरन जाना चाहिए कि मिक्सर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये मिक्सर के कॉन्सेप्ट के थ्रू से इसका नाम है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। क्या होता है मिक्सर में? इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी दोनों मिक्स होती है और वो कन्वर्ट किस में होती है? फिक्स फ्रीक्वेंसी दैट इज IF में कन्वर्ट होती है। और वो कैसे आती है? दोनों का डिफरेंस करके, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी और इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस करके IF वैल्यू आपको मिलती है 455 किलोहर्ट्ज। ये हमेशा हम लोग को 455 पे ही मेंटेन करना है। तो किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? ये वाली फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी मान के चलो ये आपका जो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी है वो आया 1000 किलोहर्ट्ज। कितने पे आया? 1000 किलोहर्ट्ज। तो ये 1000 किलोहर्ट्ज का इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिसीव करना है, तो आपको लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितने पे एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट आपका आउटपुट 455 किलोहर्ट्ज मिले? कैन एनीबॉडी ऑफ यू टेल मी, अगर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज का आ रहा है तो आपको लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कितने पे रखना पड़ेगा सो दैट आउटपुट आया आपको 455 किलोहर्ट्ज का मिले? कोई बता सकता है मुझे?
455. हाँ, अगर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज का आ रहा है तो आपको लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे रखना पड़ेगा सो डैट ये आउटपुट 545. क्या बोले? म्यूट करो ना, कौन डिस्टरबेंस कर रहा है? डिस्टरबेंस कौन कर रहा है वो म्यूट कर दे। एक जन बोलो, समझ में आएगा मुझे। 545. 545 कैसे? ये देखो IF क्या है, दोनों का डिफरेंस है ना, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और ये कितना मिलना चाहिए आपको? 455 किलोहर्ट्ज। मैंने सिंपल एक ही चीज बोला, अगर ये इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज का आ रहा है तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे रखना पड़ेगा? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे रखना पड़ेगा? अरे सिंपल है ना, आपको क्या करना है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी उतने अमाउंट में ज्यादा रखना पड़ेगा इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। आपको ये 455 किलोहर्ट्ज चाहिए ना, तो व्हाट इज इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी? 1000 में 455 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 1000 में 455 ऐड कर दो। 1455. वेरी गुड, 1455 ये वैल्यू पे आपको रखना पड़ेगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा? 455। अरे उस तरीके से भी तो सोच सकते हैं ना, हम लोग को क्या करना है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बस ये अमाउंट में ज्यादा रखना है, 455 के अमाउंट से ज्यादा रखना है। अब 455 के अमाउंट से हमेशा ज्यादा रहेगी तो दो डिफरेंस करके उतना ही मिलेगा ना 455। अब मैं आपको क्या बोला, सिंपल यही तो बोला ना, अगर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज का आ रहा है तो अपने को लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट ये आउटपुट 455 किलोहर्ट्ज मिले। तो सिंपली है ना, दोनों को ऐड कर लो, ये 1000 प्लस 455 कितना हुआ? 1455, यानी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 1455 पे एडजस्ट करके अब डिफरेंस जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 455 का मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात? समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आई क्या आप लोग को? अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अगर ये 900 किलोहर्ट्ज का है तो फिर कितने पे रखना पड़ेगा? 900 किलोहर्ट्ज है तो कितने पे रखना पड़ेगा? अगर इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी 900 किलोहर्ट्ज का आया है तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कितने पे रखना पड़ेगा? 900। 1355. वेरी गुड, 1355 यानी 1355। 900 प्लस 455। 1355. वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लोग को अभी ये क्लियर हुआ, समझ में आया क्या गेम है? समझ में आया आप लोग को क्या करना पड़ता है? तो हमेशा हम लोग को किसको एडजस्ट करने का मालूम? ये लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को। तो देखो वो जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी हाई वैल्यू आए या लो वैल्यू आए, तो वो प्रॉब्लम दूर हो गया। अब अपने को सिंपल क्या एडजस्ट करने का? सिर्फ लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने का। इनकमिंग फ्रीक्वेंसी चाहे 1600 का आए, चाहे 540 का है, चाहे 1000 का है, कितने का भी आ जाए, हम लोग को एडजस्ट किसको करने का है? लोकल ऑसिलेटर। और ये आउटपुट हमेशा कितना मेंटेन करने का है? 455। क्योंकि आगे का काम आसान होना चाहिए। आगे का जो डिटेक्शन का जो प्रॉब्लम था ना, जो हाई वैल्यू पे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, सिलेक्टिविटी पुअर हो रही थी, अब वो सब टेंशन खत्म हो गया। जो TRF रिसीवर में प्रॉब्लम था हाई वैल्यू की, वो सारा प्रॉब्लम रिमूव हो गया, क्योंकि तुमने अब फिक्स फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट कर दिया, वो भी लो वैल्यू है, तो आगे का काम आसान हो गया। यानी अपना डिटेक्शन आसानी से हो रहा है, ऑडियो एंड पावर एम्पलीफायर अपना बराबर से एम्पलीफाई करके दे पा रहे। तो मिक्सर का यूज करने से ये सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए जो आगे के प्रॉब्लम थे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब आप लोग को क्लियर हो पाया होगा, आई होप, कि व्हाट इज द सुपर हेटेरोडाइन कॉन्सेप्ट। तो सुपर हेटेरोडाइन क्या करता है? दो इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को मिक्स करता है, आउटपुट में फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। और AM रिसीवर में वो फिक्स फ्रीक्वेंसी कितने पे है? इट इज 455 किलोहर्ट्ज पे। तो आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो पाई होगी। मैं इसका जो वर्किंग है वो आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, बता दूंगा व्हाट इज द वर्किंग। और एक और चीज है इसके अंदर, वो है AGC ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। इसका भी मैं आपको, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सो टिल द टाइम आप लोग उसको, जो भी प्रॉब्लम आप लोग को आ रहा है, कुछ अगर अभी भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, मैं जरूर आपको उसको पर्सनली मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग। प्लीज स्टे एट होम, स्टडी वेल। थैंक यू very much.